in Greek में glossa कहेंगे, ठीक है? So wherever you see the point glossa या lingua, you should know that they're talking about the tongue. Alrighty. All right. So the tongue is a mobile mass of muscle which is covered by the mucous membrane. ठीक है, so your tongue, it's one organ, and what it is a bunch of muscles, and उसके ऊपर एक mucosa layer लगा हुआ है, and that's about it. There's nothing else added to it. It is present in two areas. ठीक है, एक oral cavity में present होता है और oral pharynx में present होता है. Pharynx आपको पढ़ाया गया होगा cranial जब पढ़ा रहे थे. The pharynx has how many parts? It has 3 parts. कहाँ present होता है pharynx? Pharynx होता है back of the cranium में present होता है, आपके oral cavity के पीछे present होता है. And pharynx कौन कौन से parts होते हैं? जो nose के पीछे होता है उसको nasopharynx कहते हैं, जो oral के पीछे होता है उसको oropharynx कहते हैं, and जो larynx में होगा उसको laryngopharynx कहते हैं. So the tongue is basically present in the two areas. एक oral cavity में present होता है and एक oropharynx में present होता है. What are the functions of the tongue? The functions of the tongue is basically सबसे important and सबसे first thing is articulation. Articulation is what? Forming words while speaking. जैसे अभी बात करें, जैसे हम आवाज़ें निकालते हैं, था, ला, ऐसी आवाज़ें जो ना, ये जो है आपकी आवाज़ें जो निकालते हैं, you touch the tip of your tongue and the way you fold your tongue, the muscles around on the lateral side, that is called formation of words, right? इसको articulation कहते हैं हम लोग. So for that you need the tongue. So the first काम क्या है? Articulation of the tongue. Next thing is deglutition. Deglutition का दूसरा लफ्ज़ क्या होता है? Deglutition is basically swallowing, right? So it takes part in swallowing. Swallowing के different ways होते हैं, right? So number one thing is squeezing the food into the oropharynx. What the tongue does is जब हम swallow करते हैं, firstly हम chew करते हैं, right? Chew करते हुए जब हम swallow करने जा रहे होते हैं, we push the food all the way to the palate, right? It touches the hard palate, it touches the soft palate, and then it goes in. Why is that important? That is important because when the food is touching, basically जब आपका tongue push करता है उसको, तो there's a reflex that goes and closes the epiglottis. Epiglottis क्या होता है? It's a little cartilage that covers the windpipe, the trachea. ताकि आपका जो खाना जब आप swallow करें, it goes directly into your esophagus, right? So that काम, ये जो reflex है, ये काम कौन करवाता है? Deglutition वाला. It's because of your tongue. If your tongue pushes the food all the way to the palate, ये reflex on होता है, epiglottis बंद होता है. So what is the function of the tongue? Number one, it helps with articulation, right? Which is basically आपका articulate करता है, and secondly, deglutition, swallowing. ठीक है? And it helps with the oropharynx. इसको side में करते हैं. ठीक है? Third काम इसका ये करता है taste. ठीक है? Taste में काम करते हैं. There are 4 different types of taste. Okay, I finally see your messages. Okay, walaikum assalam everyone. And I am good, Salman. Thank you for asking. And Arham, I have been nowhere. I have been waiting for my lecture. Chalo, ab wapas back to the lecture, right? Functions of the tongue. Now, functions of the tongue, again, articulation, forming of words, deglutition, squeezing food into the oropharynx, and taste. So, tongue की जो है ना 4 tastes होते हैं, ठीक है? 4 में से number 1 आपका है पहले sweet, ज़ाहिर मीठा, ठीक है? Then there's salty, which is namkeen. There's bitter, right, which is कड़वा, ठीक है? And there's sour, which is खट्टा, ठीक है? So what is the tongue? The tongue only can taste 4. ठीक है? Sweet, salty, there is bitter and sour. Second is or fourth, like basically also helps with mastication. Mastication is what? Chewing. ठीक है? जब हम chew करते हैं food, that's basically mastication. And lastly, also with oral cleaning or oral hygiene. जब कोई बोलता है ना दांत में आपका कुछ फंसा हुआ है, तो सबसे पहले आपका ज़बान जाता है वहाँ पे. So basically, oral cleaning or oral hygiene में भी काम करता है. ठीक है? These are the 5 main important functions of the tongue. All right. Next topic is parts of the tongue. There are different parts of the tongue. ठीक है? They're divided into how many parts? 3 parts. There's the apex, the body, and the root. ये तस्वीर में दिखा लेती हूँ मैं आपको, ठीक है? So the different parts of the tongue is, you see this part, it is basically, yeah, apex, body, and root, ठीक है? तो अब ये जो cross section जो picture में दिखाई हुई, this is a vertical cross section, ठीक है? आपको vertically skull को half किया हुआ बीच में से. What you see in here is number 1, पहले ये देखें, ये दांत नजर आ रहे हैं ना, अल्लाह करे आप लोगों को याद हो ये दांत हैं, ठीक है? These are your front teeth. These are called the incisors. जो front teeth आते हैं, ये lip आया आपका,
ठीक है, these are your lips, this is your teeth, and there comes a mandible जो नीचे वाला हिस्सा है, right? जो आपका चिन बनाते हैं, this is the mental part of the mandible. ये mandible bone है आपकी, ठीक है. ऊपर ये maxillary bone आते हैं आपका, this is a hard palate, this is your soft palate, ठीक है. So again ये आपकी tongue है, right? tongue के कितने parts हमने बताए? 3 parts. apex. apex हम क्या कहते हैं? जब हम कोई triangle बनाते हैं, when we make a triangle, या ये इस arrow को देख लें आप, the pointy end is called as the apex. So इस पूरे tongue में जो सबसे pointy part है is the apex. Then comes the middle part, जो big body होती है, right? जो सबसे बड़ा part होता है उसको usually हम anatomy में sorry body कहते हैं. Then comes the end, the root. किसी भी चीज का end जो सबसे end में होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? Root, right? So there are 3 parts of the tongue: apex, body, and the root. ठीक है. So now do you know, I hope you understand this picture of the tongue. Dorsum of the tongue यहाँ पे label किया हुआ है. Dorsum का मतलब क्या होता है? Anterior. Does anyone know dorsum का मतलब क्या होता है? सब कहाँ लगे हुए हैं? अब सब कहाँ? Dorsum is not posterior, Mejan. Dorsum is posterior. Yes, dorsum is anterior. उसवा बेटा क्या हुआ? चलो, come on. This is the tongue. Apex is the pointy part. ठीक है, ventral, anterior, dorsal, posterior. I understand. Dorsal, anterior. चलो, ठीक है. Apex, body, and root. Dorsum of the tongue is the top part of the tongue. This is all the top part of the tongue. Dorsum of the tongue. ठीक है. Then there comes the root of the tongue, जो basic part आता है. ठीक है. Now we are going to keep going. Next point. ठीक है. This is basically apex and body of the tongue. जो मैंने अभी देखा है. Apex को क्या बताया? Also known as the tip of the tongue. It is the anterior most part of the body of the tongue. It rests against the incisors. Back to the picture, as we've seen. This is the apex of the tongue. It is the tip of the tongue. You can see it. It rests in front of the incisors. Incisors are your front teeth. जो सामने के 2 दांत नजर आते हैं ना, जो 4 दांत आगे ऊपर 2 के नीचे 2, right? Those are your incisors. ठीक है बच्चे. So incisors के part जो rest करता है, this is apex, and it is obviously, as you see, it is part of this whole body, right? So apex is the tip of the tongue. It is the interiormost part of the body of the tongue, and it rests against the incisors. All right. Now we come to the body of the tongue, which is the biggest part. As you can see, it comprises approximately 2/3 of the tongue. It is anteriormost part and extends between the apex and the root. It is present between the apex and the root के बीच में body है, biggest है, 2/3 part है. What the best thing is, they both are extremely mobile. Again, जो हमने functions पढ़े थे tongue के, mastication वाले, chewing वाले, basically articulation वाले, ये mostly done by the apex and the body है, right? They're extremely mobile parts. That's why they are done properly. Then comes the root of the tongue, जो हमने पढ़ा. Root of the tongue is present posteriorly in the oropharynx. बात समझ में आ रही है? इसके आगे पिक्चर है. हाँ, the root is present posteriorly, पीछे की तरफ है. ये oropharynx आ गया ना यहाँ पे. जो oral cavity हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे apex and body था. थोड़ा सा हिस्सा बॉडी का, और रूट जो है ना, दिस इज प्रेजेंट इन द फेरिंग्स, ये पीछे वाला पार्ट, दिस इज द फेरिंग्स. ये नोज आएगा ऊपर तो ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स है, एंड यहाँ पे लेरिंग्स तो लेरेंजोफेरिंग्स है, राइट? सो यू हैव द एपेक्स, द बॉडी एंड द रूट. द रूट इज प्रेजेंट इन योर ओरोफेरिंग्स, ठीक है, एंड ये पीछे की तरफ है. टंग का, पूरे टंग का देखा जाए तो टंग के पोस्टीरियरली आता है ये. It extends between the mandible and the hyoid bone, and it is the most vertical part of the tongue. Now what you see is it is mandible ये रहा and hyoid bone आपका ये रहा. जो इन दोनों के बीच में होता है आपका root, ठीक है? And what it does, it basically extends between the mandible and the hyoid. ये पूरी सी extension है, and it is the most vertical part. अब पूरी tongue को देखिए horizontally placed है ना, जब आप बात करते हैं आपका tongue horizontally placed होता है, but the root is ये vertically placed है in the oropharynx. देखा, ये सीधा जा रहा है यहाँ पे. So it's the most vertical part of the tongue, ठीक है? And it extends between the mandible and the hyoid bone. बात समझ में आ रही है? I really hope समझ में आ रही है, ठीक है? It's not that difficult, honestly. Tongue की जो है ना, आगे मैं, ये सबसे easy part है basically tongue का, ठीक है? अब आ जाते हैं surfaces पे. Anatomy में as always हम surface करते हैं, margin करते हैं, right? ऊपर, anterior, posterior, inferior, superior, क्या क्या चीजें वो सब करते हैं, ठीक है?
अब आ जाते हैं हम लोग सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टंग पे, जो हमने देखा था, ठीक है. Now, superior and posterior surface, also known as the dorsum of the tongue, which is the top side, divides into two parts by the terminal sulcus of the tongue. अब मैं आपको बताती हूँ terminal sulcus क्या है. अब आपको समझ आई terminal का मतलब क्या होता है, किसी चीज की end. sulcus मतलब क्या होता है, any groove, right? कोई गड्ढा या कोई groove, ठीक है. So there's a terminal sulcus on the superior surface that separates the tongue into superior and posterior part, ठीक है. मैं इसकी पिक्चर है, ठीक है. It's basically going to be present somewhere over here on the tongue, जो नजर आ रहा होगा, ठीक है. Terminal sulcus that will separate the superior and the posterior surface of the tongue. फिर आता है इसका inferior surface, which is underside, जो underside of the tongue. जब आप कहते हैं ना जबान उठाएं नीचे देखें तो नीचे underside of the tongue आता है. That is the inferior surface of the tongue. And where does it rest? It rests on the floor of the mouth. सही बात तो सही है. Here, margins of the tongue. The margin of the tongue separating the two surfaces is related on each side to them. ठीक है, on the lingual gingiva and the lateral teeth. Gingiva is basically what the gums, जो आपके gums होते हैं उनको gingiva कहते हैं हम लोग, ठीक है. तो lateral margins of the tongue जो है साइडों पे, lingual मतलब tongue और gingiva मतलब जो gums पे साइडों लगते हैं ना उसको lingual gingiva कहते हैं, and lateral teeth जो teeth आपके साइडों पर है, ठीक है. अब आ जाते हैं terminal sulcus of the tongue, जो मैं बात करी थी आपको, right? It is present on the dorsum of the tongue, characterized by the V-shaped groove known as the terminal sulcus of the tongue. Here, तस्वीर दिखाऊं, तस्वीर में समझ में आएगा. Here, ठीक है, ये आपका टंग है, ये आपको जब जबान बाहर निकालते हैं, this is what you see. ये आपका ना posterior part आ जाता है, पीछे का part आ जाता है, ठीक है ना. You see this V-shaped groove right here? It's a perfect V. This V-shaped groove is called as the table below of it, terminal sulcus. I'll explain this whole picture to you, but हम लोग one at a time करेंगे, ठीक है ना. So ये आपका terminal sulcus है, it separates the and superior surface, anterior and posterior में, ठीक है. अब आ जाते हैं, ठीक है. V shaped groove देख लिया हमने, and it's called as the terminal sulcus. The terminal sulcus divides the dorsum of the tongue transversely कर रहा है, into pre-sulcal anterior part in the oral cavity and the post-sulcal posterior part in the oropharynx. एक pre-sulcal है, जाहिर बात है, pre मतलब पहले, right? Pre the sulcus and post-sulcus, ठीक है, behind the sulcus, ठीक है. That is your, what is this called? Your posterior, your side of the tongue. अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया terminal sulcus की. Next thing is the foramen cecum या thyroglossal duct. Now जो foramen cecum है, it is the angle, it's pointing, it's the angle of the terminal sulcus points posteriorly to the foramen cecum. Foramen मतलब छोटा hole, cecum मतलब छोटा उसका नाम है ये, ठीक है. So you see this arrow बनता है, right? ये arrow जिस तरफ point कर रहा होता है, this is the foramen cecum right here. It's labeled as well, ठीक है. अब कैसे पता चलेगा ये आगे का हिस्सा है ओरल कैविटी का, ये पीछे का हिस्सा है ओरोफेरिंक्स का. नंबर वन, अब यहाँ पे ना खाली, सो यहाँ पे क्या आएगा, टीथ्स आएंगे आपकी, ये दो मार्जिन्स जो हमने पढ़े थे, मार्जिन्स ऑफ द टंग. सेकेंडली यहाँ पे आपका ओरोफेरिंक्स के वॉल्स बनने लगे हैं, राइट. यहाँ पे आपको टॉन्सिल्स नजर आया है, आपको यहाँ पे पैलारोग्लॉसल आर्च नजर आ रही है, ठीक है. पैलारोग्लॉसल मसल्स है आपका यहाँ पे, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है आपके यहाँ पे. तो ये पोस्टीरियर साइड आ गया आपका पोस्टल का पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है ना. और ये जो है प्री सर्कल है, ये जो टर्मिनल सर्कस जो है, ये जो पॉइंट करे जिस एरो पर, राइट हियर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोरामेन सीकम, ठीक है. सो द फोरामेन सीकम, दिस स्मॉल पिट, ठीक है, frequently absent, ठीक है, is a non-functional remnant of the proximal part of the embryonic thyroglossal duct. Thyroglossal duct is forms which the thyroid gland is formed, ठीक है. Thyroglossal duct जो है remnant होता है, एम्ब्रियोनिकली जो है थायरोग्लॉसल डक्ट थायराइड फॉर्म करता है आपका, ठीक है ना. तो जब ये छोटा छोटा पतला सा होने लगता है, एक डक्ट होता है, ये आपके ब्लू पेजेस में भी केलम में होगा. इफ इट्स रिमेन्ड, अगर वो खुला रह जाए तो थायरोग्लॉसल डक्ट फॉर्मेशन हो जाती है. इट्स अ कैविटी कनेक्शन बिटवीन द टंग एरिया एंड द थायराइड, ठीक है ना. अब नेक में आपको नजर आता है, ये आपके ब्लू उसमें क्लिनिकल साइंस में प्रेजेंट होगा, उसको जरूर पढ़ना, ठीक है ना. एंड what happens is a normal adult में ये फ्यूज हो जाता है. when it fuses it forms the foramen cecum, ठीक है. नेक्स्ट होता है ये, जी बेटा, फोरामेन सीकम एक कैलवरी में भी होता है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है ना. ये वाला जो है फोरामेन सीकम हम ऐसा पढ़ेंगे जब आप एम्ब्रियो में पढ़ रहे होते हैं,
ठीक है ना. Foramen cecum is also present in the calvaria. That's a different. Okay, next is your picture. ठीक है, अगेन बार बार रिपीट करूंगी. दिस इज द इंटीरियर पार्ट. ठीक है, ये मिड लाइन ग्रूव देख रहे हैं बीच में जबान में सबको नजर आता है. एपेक्स ऑफ द टंग, ये बॉडी ऑफ द टंग होगा. ठीक है, ये टर्मिनल सल्कस है, प्री टर्मिनल सल्कर पार्ट, पोस्ट टर्मिनल सल्कर पार्ट. ठीक है, वेयर डज दिस एरो पॉइंट? वी शेप होता है. दिस पॉइंट्स एट द फोरामेन सीकम. चलो, a midline groove divides the interior part of the tongue into right and left parts. ठीक है, as you see midline में है, right and left part में आपको divide कर रहा है tongue को. ठीक है, now there is a mucosa. The mucosa of the interior part of the tongue is relatively thin and closely attached to the underlying muscle. ठीक है, it has a rough texture because of the numerous small lingual papilla. अब ये जो interior part का है ना, ये जब हम कहते हैं कि बहुत sensitive part होती है हमारी tongue की, sorry, right here, this anterior part is very thin and it's closely attached. ठीक है ना, मैंने starting में ही बताया था, tongue is what? It's a bunch of muscles. ठीक है, और उसके ऊपर एक पतला सा mucosa layer. That's all tongue is. ठीक है ना, तो ये जो mucosa layer जो anterior part का है वो बहुत thin होता है and it's very firmly attached to your muscle. ठीक है, और थोड़ा सा रफ सा भी होता है. इवन इफ यू सी इट लाइक विद योर आईज राइट नाउ, ग्रॉसली आपको बहुत ही रफ सा नजर आता है, राइट? तो अब रफ सा क्यों होता है? उसमें लिंगुअल पैपिला होते हैं. पैपिला इज बेसिकली लाइक व्हाट? पैपिला हर जगह एनाटॉमी में सबसे कॉमन लफ्ज यूज होने वाला है पैपिला. इंटेस्टाइन में होता है पैपिलास, हर जगह प्रेजेंट होता है. पैपिला इज व्हाट? फिंगर लाइक छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? एनीथिंग दैट पॉइंट्स आउटवर्ड्स इज अ पैपिला, राइट? तब जबान पे अगर गौर से ग्रॉसली भी आप देख रहे हैं तो आपको छोटे 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 बड्स की तरह नजर आते हैं, छोटे छोटे जैसे mushroom types, like, you know, ऊपर तक निकले हुए होते हैं. Those are called as lingual papilla. Now what these lingual papillas are, humans में हम लोग के टंग में 4 types of lingual papilla होते हैं. ठीक है ना, तो ये 4 types, this is very important. ठीक है ना, जो viva questions, जो MCQ questions आते हैं ना, usually इन्हीं के बीच में आ रहे होते हैं. So number of first type देखते हैं हम, valate papilla. ठीक है, valate papilla is large and flat topped. इस पिक्चर में भी नजर आ रहा था. वैलेट पैपिला, ठीक है, इसमें पढ़ाएंगे जो 4 पैपिलास जो है ना, लिंगुअल पैपिला किस में प्रेजेंट होते हैं आपके? ये लिंगुअल पैपिला में इज ऑन द इंटीरियर प्रीसल्कल पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हम इसकी डिस्कशन करें, प्रीसल्कस पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द म्यूकोजा की. ठीक है, कितने पैपिलास हैं? 4 पैपिलास हैं. नंबर 1 वैलेट पैपिला हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी. ठीक है, नाउ वैलेट पैपिला इज लार्ज, flat topped. It lies directly anterior to the terminal sulcus and are arranged in a V-shaped row. Obviously V-shaped row में क्यों पता V-shaped row में? Because terminal sulcus के एकदम आगे हैं. Terminal sulcus कौन सी shape का है? V-shaped का. ठीक है? They are surrounded by deep circular trenches. What is the meaning of trenches? Trenches is what? गड्ढे. ठीक है ना, गड्ढे खोदना, बड़े-बड़े गड्ढे, it's trenches. So they are surrounded by deep circular trenches, the walls of which are studded with taste buds. The ducts of the Sears glands of the tongue open into these trenches. ठीक है ना? A lot of information, but very important information. What happens is, you see this goal, these are your circular trenches जो हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है ना, तो इसके अराउंड क्या होंगे? ये वैलेट पैपिला होगा, राइट? किस शेप में जा रहा है ये? वी शेप में जा रहा है, राइट? एंड दिस इज व्हाट ट्रेंचेस में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सीरियस फ्लूइड्स आएंगे, टेस्ट बड्स भरे हुए हैं आपके, राइट? अगेन लार्ज होते हैं, फ्लैट टॉप्ड होते हैं, दे आर anteriorly to the terminal sulcus. They are arranged in V-shaped. They are surrounded by deep circular trenches, the walls of which are studded by taste buds, and the ducts of the Sears gland of the tongue open into these trenches. Right, now we come to the foliate papilla. Foliate papilla are small lateral folds of the lingual mucosa. They are poorly developed in humans. मतलब ये वैसे इतने important नहीं होते, but they are present, right? ये lateral walls में होंगे आपके margins में. ठीक है, थोड़े थोड़े से होते हैं, ज्यादा नहीं होते, जो छोटे folds होते हैं. ठीक है, they're poorly developed and they're very small. ठीक है, but they are a part of your lingual papilla. So if they were asked, there are 4 types: valate papilla and foliate papilla. Then comes the filiform papilla. ठीक है, they are long and numerous. ठीक है, this is very important. They're long and numerous. Contains afferent nerve endings that are sensitive to touch. ठीक है, these are scaly conical projections and pinkish gray. ठीक है, जब हम जबान बाहर निकालते हैं, the first thing that you see पूरे body पे जो भरा हुआ होता है ना, basically यहाँ पे ये देखें ना, filiform label, ये पूरे एरिया में भरा हुआ होगा. This is what your filiform. Do you understand? यहाँ पे filiform papilla होते हैं. ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा afferent nerve endings होंगी, सबसे sensitive to touch होगा, और pinkish gray सा होता है. आप किसी का भी देखें, अगर जबान बाहर निकालते हैं, pinkish gray सा body जो basically होती है उसकी.
right? So they're numerous because पूरे body में भरे हुए हैं, right? Sensitive to touch हैं. They're conical projections and pinkish gray in color, and they're arranged in V-shaped rows that are parallel to the terminal sulcus, except at the apex, where they tend to be transverse. Now let me explain this part to you. यहाँ पे आपका क्या आया, वैलेट पैपिला आया, ठीक है ना, टर्मिनल सर्कस के अराउंड, ठीक है. पे ये लैटरल मार्जिन्स पे छोटे छोटे फोलिएट आए जो पोरली डेवलप्ड है हम लोग में, ह्यूमंस में, राइट. फिर आता है आपका फिलीफॉर्म जो बहुत सारे और न्यूमरस हैं. व्हाट हैपेंस इज, ये देखिए इस अरेंजमेंट में होते हैं, लंबे 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 जा रहे होते हैं यूं, ठीक है, वी शेप में बेसिकली. मिड लाइन ग्रूव को बीच में रखते हैं एंड ये साइडों पे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं टू द वी शेप्ड, ठीक है. बट एज सून एज दे कम टुवर्ड्स द एपेक्स, देखिए यहाँ पे मिड लाइन ग्रूव भी खत्म हो रही है आस्ते आस्ते, दे बिकम ट्रांसवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्स हो जाते हैं, सीधे 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 हो जाते हैं. So I'll read it again. They're long, numerous, contain efferent fibers, ठीक है, pinkish gray in color. They are arranged in V-shaped rows that are parallel to the terminal sulcus, except at the apex, where they tend to be arranged transversely. Are we good? बात समझ में आ रही है? ठीक है. Now comes the fungiform papillae. Fungiform are mushroom, fungus, mushroom. Mushroom is a fungus. So fungiform papillae is mushroom shaped. They're pink or red spots scattered among the filiform papillae, but mostly numerous at the apex and the margins of the tongue. तो basically आपके margin of the tongue में जो छोटे छोटे pink pink spots नजर आएंगे ना tongue पे, जो bright pink से होते हैं, those are basically your fungiform. And they, where are they? They are arranged all around, scattered होते हैं, छोटे 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 छोटे, आपके इधर lateral folds में भी होंगे और filiform में होंगे. So basically the most important four that we've discussed is valate, filiform. They have the most amount, right? ठीक है, and इनकी specific features होते हैं. Foliate lateral margins में होता है, ठीक है, poorly developed होता है. Fungiform dark pinkish सा होता है, scattered all around the body between the filiform, ठीक है. Valate का क्या होता है, V-shaped trenches में होते हैं, taste buds में होते हैं, serous fluids होता है, and it is present around the right, एक रो में present होता है around the terminal sulcus, ठीक है. Now आ जाते हैं mucosa of the posterior part of the tongue. हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने ये पूरा pre-sulcal part डिस्कस किया, anterior part of the tongue. अब हम आते हैं posterior part of the tongue पे, ठीक है, which is the post-sulcal part of the, या root of the tongue, basically पीछे की तरफ आ गए हम, ठीक है. अब यहाँ पे देखने में ही देखो, बगैर कोई चीज पड़े हुए, if you just look at it, look at how like bumpy it looks, like गोल गोल सा ना, bumps से बने हुए मोटे मोटे से, right? जब आप फुटपाथ पे चलते हैं बाहर, जो फुटपाथ स्लैश लाइक रोड बनी हुई होती है, तो ऐसी मोटी मोटी सी होती है ना, जो पेवमेंट की हुई होती है, that is called as cobblestone, right? Cobblestone लगा हुआ होता है. So this is cobblestone appearance. If you can see, मोटा, if you look at this, कितने छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं इधर, papilla type के ना, smooth है comparatively to the posterior part. यहाँ पे गोल गोल से बॉडी से बने हुए हैं. Now ये जो गोल गोल से क्यों बने हुए होंगे, यहाँ पे क्या लेबल किया हुआ है, lingual tonsils. What are tonsils? कोई बता सकता है, what are tonsils? Tonsils बच्चों, चलो. Tonsils are very good. Good job. Excellent, you guys. Lymphoid tissues. Yeah, lymphoid aggregation. Very good. ठीक है ना? So those are tonsils. जो lymphoid जो आप कहते हैं, छोटे छोटे ना, बहुत सारे इकट्ठा हो जाए एक जगह पे, बहुत सारे mass हो जाए या collection हो जाए, these are called as tonsils. So ये छोटे छोटे individual क्या होंगे, ये lymphoid nodules हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए ना, lymphoid nodules, एक एक individual को lymphoid nodules क्या क्या है, and together ये क्या बनाते हैं, lingual tonsils बनाते हैं. And ये क्या इफेक्ट देते हैं, cobblestone appearance देते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं होती बेटा. चलो. The mucus of the posterior part of the tongue is thick, freely movable. ठीक है ना, it is not, अब anterior part में हमने क्या कहता है, is firmly adherent. इसमें क्या है, freely movable है, right? It has no lingual papilla, ठीक है ना, but the underlying lymphoid nodules जो हमने देखे थे give the part of the tongue an irregular cobblestone appearance. We've seen this. The lymphoid nodules are known as collectively as the lingual tonsils, जो माशाल्लाह आप लोग सबको आता है. Very good. Good job. ठीक है ना. Now we will go to the inferior surface of the tongue. अब इतना कुछ हमने ऊपर जो हमने superior surface discuss कर लिया, अब हम आते हैं inferior, ये वाला part of the tongue पे, ठीक है ना. इस underside of, जब जबान उठाते हैं, this is the inferior surface of the tongue. अच्छा, all these pictures are present in your calum. जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपका calum खुला हुआ होगा, this picture is present, ठीक है ना. Again, anatomy, please बच्चों, Netter's Atlas and calum खोल खोल के पढ़ा करो, right? So that you don't have to ratify everything, you understand half the stuff. Okay?
So let's start this. Now we are going to discuss. हमने पूरा ऊपर से superior surface discuss किया, dorsum पूरा of the tongue discuss किया. अब हम आते हैं आपके inferior surface of the tongue से underside of the tongue पे, ठीक है ना? Now underside of the tongue, inferior surface of the tongue is covered with a thin, transparent mucous membrane, ठीक है ना? Thin है and transparent है, ठीक है? ये बहुत important बात याद रखने की. This surface connects the floor of the mouth by a midline fold called the frenulum of the tongue. ठीक है? Let's go to the picture. We always go to the picture in anatomy. What you see is, number one, do you see how shiny it is? And thin कैसे पता चला? देखिए veins नजर आ रहे हैं और इतनी सारी यहाँ पे लेबलिंग हुई है, ग्लैंड्स की ओपनिंग नजर आ रही हैं, veins नजर आ रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है. कोई चीज ट्रांसपेरेंट कैसे होगी? अगर वो थिन होगी, राइट? सो द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग का म्यूकोसा कैसा है? थिन है एंड इट इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है, thin, transparent, and what it does is it attaches the tongue. ये tongue का inferior surface है, inferior surface of the tongue. It attaches the inferior surface of the tongue to the floor of the mouth. This is your floor of the mouth. ये floor of the mouth से label किया हुआ है, ठीक है? तो attach करके रखता है. किस तरह attach करता है? ये जो पतली सी attachment देख रहे हैं ना यहाँ पे ये. This is called as the frenulum of the tongue. ठीक है? Now we come in the midline होता है, obviously midline fold. The frenulum allows the anterior part of the tongue to move freely. जाहिर बता जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ होता है. On each side of the frenulum, ठीक है, a deep lingual vein is visible through the thin mucous membrane. मैंने भी दिखाया भी था ना कि एक vein visible नजर आ रही है, ये रहा. Do you see this? These are deep lingual vein. Lingual मतलब tongue. Deep मतलब नीचे inferior deep side पर है ना, इसलिए deep lingual vein. These are transparent and you can see them in the posterior surface. ठीक है? On each side of the frenulum, a deep lingual vein is visible through the thin mucous membrane. ठीक है? अब आ जाते हैं next point पे. A sublingual caruncle. Caruncle is basically a papilla, but बहुत ही मोटा सा होना, तो caruncle कहते हैं उसको. Papilla तो पतले पतले छोटे छोटे finger like होते हैं ना, अब caruncle कहते हैं big मोटा सा होना. ठीक है? A sublingual, sub मतलब below, lingual मतलब tongue. Sublingual caruncle is present on each side of the base of the lingual frenulum. All right, let us understand this line. A sublingual caruncle is present on each side of the base of the lingual frenulum. This is the base. ये frenulum लगा हुआ है tongue पे, ये floor of the mouth पे. On each side पे ये मोटा सा caruncle देख रहे हैं? Papilla तो छोटे छोटे से होते हैं. ये caruncle, this see sublingual caruncle is present on each side. एक side पे भी present है और दूसरी side भी present है. ठीक है? That includes the opening of the submandibular duct from the submandibular salivary gland. ठीक है ना? अब आपका submandibular duct आता है. ये mandible था ना, नीचे वाला bone जिसपे ये teeth आए हुए हैं, right? इसमें submandibular gland होगा आपका, right? तो इनकी जो opening होगी ducts की छोटी छोटी, these are present on the sublingual caruncle. ठीक है? That is the importance of this sublingual caruncle and the frenulum. ठीक है? Frenulum के base पे present होती है. Okay, we repeat this topic. Okay, sublingual caruncle is present on each side of the base of the lingual frenulum. That includes the opening of the sublingual gland. I hope you understand all of this. Now we come, आगे बढ़ते हैं. Again, इस picture को समझते हैं. Inferior surface of the tongue, we know this. Frenulum is the midline attachment, right? Floor of the mouth है. ठीक है, अब ये जो साइड में है ना inferior buccal gingiva. Gingiva क्या है? गम है आपके, जो gums होते हैं ना जिसपे teeth है. This is called gingiva. ठीक है, अब बकल मतलब जो चीक्स हैं, इंफीरियर मतलब नीचे, तो जो चीक्स जहाँ पे लग रहे हैं ये इंफीरियर जिंजिवा हो गया. अब जहाँ जहाँ होगा ना ये इंफीरियर लिंगुअल जिंजिवा हो गया. क्यों? नीचे की तरफ है और टंग आके लगती है यहाँ पे, इसलिए लिंगुअल हो गया. ठीक है, अब आते हैं आपकी डीप लिंगुअल वेन. यू नो दिस पार्ट. ठीक है, सबलिंगुअल caruncle आपको समझ में आ गया. आई really hope that you understand this picture. ठीक है, अब आ जाते हैं मसल्स ऑफ द टंग, क्योंकि टंग में है ही दो चीज. एक म्यूकोजा हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, और दूसरा हमने क्या पढ़ना है? मसल्स. म्यूकोजा में हमने क्या क्या पढ़ा? म्यूकोजा के बारे में हमने एंटीरियर प्रीसल का म्यूकोजा पढ़ा एंड फिर हमने पोस्टीरियर का भी पढ़ा. ठीक है, और हमने इन्फीरियर का भी पढ़ लिया म्यूकोजा. सबके म्यूकोजा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द टंग. अब आ जाते हैं मसल्स में. मसल्स कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के. देयर इज एन एक्सट्रिंसिक मसल एंड देयर इज इंट्रिंसिक मसल. मजे की पार्ट ये दोनों चार चार है. ठीक है ना, so 4 extrinsic muscles and 4 intrinsic muscles. Extrinsic muscles alter the position of the tongue. ठीक है ना, whereas intrinsic muscles alter its shape. जब सर टंग को ऊपर नीचे उठाना, रिट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, ये सब किसका काम होता है? आपके extrinsic muscles करते हैं. ये हर कोई कर सकते हैं. Intrinsic muscles जो है ना शेप ऑल्टर करते हैं. जब हम कहते हैं ना यूं मुंह गोल करके रोल कर लेना, हर कोई नहीं कर पाता इसको, because these are the intrinsic muscles. They just alter the shape. लेकिन प्रेजेंट सब में होता है.
The four intrinsic and four extrinsic muscles in each half of the tongue are separated by a median fibrous lingual septum, which merges posteriorly with the lingual एपिन्यूरोसिस. अब मुझे नहीं पता इसमें पिक्चर मैंने डाली कि नहीं डाली है. नहीं, इसमें पिक्चर नहीं है. आई विल गो बैक टू दिस पिक्चर. यस, ठीक है ना. ये मिडलाइन ग्रूव देख रहे हो बच्चों? ये लिंगुअल सेप्टम भी लिखा हुआ है ना इधर. ठीक है. सो व्हाट इज देयर? जैसे चार मसल है ना टंग के, तो जरूरी नहीं कि पूरे चंक में सिर्फ चार मसल है. नहीं, राइट के अपने चार होते हैं, लेफ्ट के अपने चार होते हैं. ठीक है ना. टोटल सेम है, एकदम एग्जैक्ट सेम मसल हो गए, लेकिन ये चारों मसल आके राइट के अलग है, लेफ्ट के अलग है. ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. तो हम चार मसल याद करेंगे, दोनों पे सेम चीज होगी, सेम मसल होगा. मीडियन, जो मीडियन ग्रूव दिखाया था उसमें मीडियन फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम है अंदर की तरफ. ठीक है ना. जहाँ पे पीछे जाके लिंगुअल एपिन्यूरोसिस होता है. एपिन्यूरोसिस हमें पता होना चाहिए, अब तक सारे मसल्स अटैच होते हैं वहाँ पे, राइट. अब राइट बिफोर वी नो, मसल्स पढ़ने से पहले हमें उसके अटैचमेंट और वो सब पढ़ने से पहले हमें बोन पढ़नी पड़ती है. तो मैंने इसमें बोन का थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए लगा दिया. ठीक है ना. तो ये बोन, सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बोन्स कौन कौन सी हमारी, एक होगी मैंडिबल और दूसरी होगी हायर्ड बोन. ठीक है ना. मैंडिबल बोन आपकी ये है, आई डोंट रिमेम्बर, पता नहीं बच्चों आप लोगों को दिखाया नहीं दिखाया, बट द मैंडिबल बोन इज लाइक दिस. ठीक है ना. ये आपकी इस तरफ नजर आती है. इसके फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपको पता होने चाहिए. जो चिन निकलती है, जो चिन सबकी निकली हुई ना, ये साइड में, ये ऊपर, इसको कहते हैं मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोट्रूबरेंस इसमें लिखा हुआ है. ठीक है. और जो उसकी जो साइडों वाली होगी, दैट इज कॉल्ड एज दी मेंटल ट्यूबरकल. प्रोट्रूबरेंस जो बीच वाली ऐसा होता है. ठीक है. नाउ बीच में जहां पे आपका मैंडिबल फ्यूज होता है दांतों के एकदम नीचे, दैट इज कॉल्ड एज दी मैंडिबुलर सिम्फिसिस. ठीक है. दिस एरिया इज कॉल्ड एज अगेन मेंटल प्रोट्रूबरेंस, मेंटल ट्यूबरकल. मेंटल का मतलब चिन, बेसिकली ये याद रख लो. ठीक है ना. और मेंटल फोरामिना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब एंगल ऑफ द मैंडिबल कौन सा, जो आपकी ईयर के नीचे सब फील कर सकते हैं ना, जहां पे टर्न ले रहा है आपका जॉ, दैट इज कॉल्ड एज दी, ये दिस इज द एंगल ऑफ द मैंडिबल. पीछे से पोस्टीरियर व्यू है. ठीक है. दिस इज द एंगल ऑफ द मैंडिबल. ये लेबल भी होगा, एंगल ऑफ द मैंडिबल, राइट हियर, एंगल ऑफ द मैंडिबल. अब एंगल ऑफ द मैंडिबल और चिन तक की जो स्ट्रेट बॉर्डर जा रही है, हर कोई फील भी कर सकता है अपना, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है ये. ठीक है. अब आ जाते हैं आपके यहाँ पे सारे आपके लगे हुए दीज, ये जो चार दांत देख रहे हैं ना आप, ये दीज आर योर इंसाइजर्स. यहाँ पे आके आपकी एपेक्स ऑफ द टंग बैठता है. ठीक है. आगे देखें आपका नेजल, ये नेजल एरिया होगा, तो एंटीरियर नेजल स्पाइन, दिस इज ऑल मैक्सिलरी बोन. वी आर डिस्कसिंग मैंडिबल बोन. ठीक है. ये रेमस आता है, मैंडिबुलर रेमस आता है. ठीक है. ये जो दो उसके जो जॉइंट्स बनाते हैं, राइट. ये हेड होगा, ये नेक होता है इसका, कॉन्डाइलाइट प्रोसेस होता है, कोरोकोइड प्रोसेस होता है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस, बेसिकली कोरोनॉइड प्रोसेस एंड कॉन्डाइलर प्रोसेस. ठीक है. ये थोड़ा सा रिव्यू कर लिया हमने. ठीक है. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन इज दी हायर्ड बोन. मुझे डर लग रहा है कहीं सब सो तो नहीं गए. खैर, ठीक है. हायर्ड बोन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. क्यों? ये शायद मैंने एक दफा बताया भी है क्लास में. ठीक है. नेक का प्रेजेंट होता है एकदम, ये रहा. जी सी दिस इज योर हायर्ड बोन. ये मैंडिबल आ गया आपका. मैंडिबल के एकदम नीचे हायर्ड बोन होता है. हायर्ड बोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है ना. गुड जॉब, थैंक यू बेटा, सोनी अल्लाह का शुक्र. ठीक है. अब हायर्ड बोन जो होता है ना आपका बेटा, दैट इज बेसिकली, मैंने बताया भी, फोरेंसिकली क्यों इंपॉर्टेंट होता है. जब किसी का खुदा ना खास्ता कोई किसी का गला दबाता है, एंड इफ समवन डाइज बिकॉज ऑफ दैट रीजन, तो उसका ये हायर्ड बोन फ्रैक्चर होता है. व्हेन द हायर्ड बोन फ्रैक्चर्स, ये आपकी ब्रीदिंग स्टॉप कर देता है बेसिकली. व्हाट हैपेंस, ये कोलैप्स होता है एंड डेथ हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज द हायर्ड बोन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा है द रूट ऑफ द टंग. ठीक है ना. एपेक्स किधर लग रहा है? इंसाइजर पे. बॉडी ये सारा बीच में होगा टंग के, and root of the tongue is attached between the hyoid and the mandible. This is where the root of the tongue is attached. ठीक है. इसलिए मैं हायर्ड बोन दिखा रही हूँ आपको. हायर्ड बोन में क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है. एक ग्रेटर हॉर्न होगा जो बड़ा वाला, एक लेसर हॉर्न होता है. ठीक है. एंड ये बॉडी ऑफ द हायर्ड है. ठीक है. बॉडी ऑफ द हायर्ड फेसेस एंटीरियरली, आगे की तरफ, ये बॉडी ऑफ द हायर्ड, लेसर हॉर्न एंड द ग्रेटर हॉर्न. ओके बच्चों, थैंक यू बच्चा, शुक्र है. मुझे डर लग रहा था सब सो तो नहीं गए. ठीक है. Now we come to the extrinsic muscles of the tongue. Now, as I discussed, there are four. ठीक है. Genoglossus, hyoglossus, styloglossus and palatoglossus. अब इनके नाम anatomy में किस तरह रखे गए हैं, जो जहां जहां ये जाके लगते हैं. Glossus मतलब टंग. ठीक है. अब पहले डिस्कस करते हैं hyoglossus. Hyo मतलब हायर्ड बोन. ये रहा, ये हायर्ड बोन है ना. अब ये हायर्ड बोन से जो मसल जा रही है टंग में लग रही है, hyoglossus. ये हायोग्लॉसस मसल हो गया आपका. स्टाइलोग्लॉसस
अगर आप लोग को स्कल पढ़ाया गया तो उसमें एक स्टाइलर प्रोसेस होता है, जो इधर ये रहा, ये स्टाइलर प्रोसेस जो कान के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है, स्टाइलर प्रोसेस होता है वहाँ पे ना। तो दिस स्टाइलर प्रोसेस, यहाँ से एक मसल आएगी स्टाइलो ग्लॉसिस। तो ये कौन सा मसल हो गया? स्टाइलो ग्लॉसिस मसल हो गया आपका, ठीक है। देन देयर इज पलारोग्लॉसिस। इन जो पिक्चर जो मैं बार बार दिखा रही थी, वो जो पैपेला वाला पिक्चर है, बार बार मैं दिखा रही, ये जो मसल बार बार दिखा रही है इसमें, दिस इज पलारोग्लॉसिस मसल। ये पैलेट से आ रहा है ऊपर आपके, ये जो फेरिंग्स है ना, ये पैलेट के पास है, इसलिए ये पलाटो ऊपर से आ रहा है पैलेट से और जाके टंग में लग रहा है, ठीक है। ये मसल, दिस इज दी पलारोग्लॉसिस मसल, जो इस क्रॉस सेक्शन व्यू में नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। सो दिस इज योर स्टाइलोग्लॉसिस मसल, hyoglossus muscle and genoglossus muscle. Genoglossus muscle is basically the biggest muscle है और ये आपका पूरा बॉडी बनाता है, geno, giant basically. Genoglossus muscle. 4 muscles हैं. Again, glossus मतलब टंग. तो टंग के कौन कौन से मसल है? Genoglossus, hyoglossus, styloglossus and जो पैलेट से निकल रहा है palaroglossus. Are we good? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को पता करनी होती है, टेबल, राइट। यू ऑलवेज 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 हैव टू मेमोराइज योर टेबल। टेबल में इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है? मसल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, इनकी शेप एंड पोजीशन दिखाई हुई है, ये सब केलम से है, ठीक है ना। ये पूरा जो लेक्चर बनाया गया केलम एंड कैप्लन एनाटॉमी से बनाया गया है। तो केलम आपकी मेन फोकस है। प्लीज बच्चों मेरे नेटर्स एटलस खोल के रखा करो, उसको देख के पढ़ा करो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। आ जाते हैं, जीनोग्लॉसिस पढ़ाया है, हायोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस, पलारोग्लॉसिस। नाउ इसके अटैचमेंट्स में मसला नहीं होना चाहिए, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब शेप एंड पोजीशन, जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए बच्चों, तो आप ये एक मसल का डायग्राम के अच्छा टैबलेटेड फॉर्म में एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग बताएं, तो आपने ये बनाना है मसल, शेप एंड पोजीशन, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, डिसअटैचमेंट, मेन एक्शंस एंड एक और आपने यहाँ पे लगा के इनर्वेशन का बनाना है, ठीक है। इनर्वेशन मतलब नर्व सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर पलाटोग्लॉसिस all the muscles are innervated by cranial nerve 12, ठीक है। प्लीज मेरे बच्चों cranial nerves याद क्या करो 1 to 12, ठीक है ना। ये तुम्हारे मेडिकल स्कूल एंड तक अभी तक आज तक काम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो योर hypoglossus which is the 12th cranial nerve, ठीक है ना। तो ये all 1 2 3 are supplied by hypoglossus। अब जाए by hypoglossus मतलब टंग का, तो hypoglossus को सप्लाई करता है, except your palatoglossus. Palatoglossus is supplied by the vagus nerve, which is the 10th cranial nerve. ये क्यों important है? Because palate में आता है ना palatoglossus, और palate को कौन supply कर रहा है? Palatine muscles को आपका vagus nerve supply कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? So you have to make muscle, shape, position, proximal, distal action, and side में ना इधर innervation का बनाना और लिख देना hypoglossal muscle, hypoglossal muscle, hypoglossal nerve, sorry, hypoglossal nerve, hypoglossal nerve, hypoglossal nerve, and यहाँ पे क्या palatoglossus का क्या आएगा? Vagus nerve आएगा लिखा हुआ, ठीक है। I need you to write all of that. Now, genoglossus is a fan-shaped muscle, constitutes of the bulk of the tongue. No, sorry. Yeah, ठीक है। सबसे बड़ा है, fan shape है, देखो यूं पंखे की तरह निकल रहा है, ठीक है। It's fan shaped and it is the biggest muscle, bulk of the tongue, ठीक है। Proximal attachment क्या है? Short tendon from the superior part of the mental spine of the mandible. मेंटल मतलब चिन, स्पाइन मतलब वो जो कॉर्नर निकला हुआ है आपका मैंडिबल का ना, जो जो पॉइंटिंग ट्यूबरकल के पीछे होगा ना, वो मेंटल स्पाइन होगा, ठीक है। अब वहां से निकलता है, तो मेंटल स्पाइन ऑफ द मैंडिबल से निकला जीनोग्लॉसिस। कहाँ इसकी डिसअटैचमेंट है? इंटायर डोर्सम ऑफ द टंग, inferior and posterior most fibers attached to the hyoid bone, ठीक है। तो बेसिकली आपका पूरा रूट बना है, पूरा यहाँ से पीछे आपके हाइड बोन तक जाके लगेगा, ठीक है। इसके पीछे ये हायोग्लॉसस मसल के एकदम पीछे जाके लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका रूट भी बना रहा है और आपका बॉडी भी बना रही है, इसलिए ये सबसे बिगेस्ट मसल है, ठीक है। एंड मेरे बच्चों, जीनोग्लॉसस ये प्लीज मार्क कर लो, ऑलवेज कम्स इन योर ऑस्पी, ठीक है। इट्स अ वेरी, अगर आपके यहाँ पे इंशाल्लाह ताला व्हेनेवर स्कूल ओपन्स एंड व्हेनेवर दिस कोविड का काम पूरा होगा, आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। मॉडल्स में आप देखना कि आपके मॉडल्स में यहाँ पे दिखाया हुआ होगा पॉइंट क्या होता है जीनोग्लॉसस पे, इस पे हमेशा एक पिन लगी हुई होगी, ठीक है ना। तो ये मसल ऑफ द टंग सबसे बिगेस्ट होगा, फैनशिप होगा एंड जीनोग्लॉसस होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे आपको, मॉडल साहब दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, पता है, ये मॉडल भी ऐसे ही क्रॉस सेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अगेन प्रॉक्सिमल अटैचमेंट क्या है इसकी? मैंडिबल है, ठीक है। ये रहा मैंडिबल से निकला, ये मेंटल स्पाइन है, मतलब ये जो चिन निकली हुई ना, इसके अंदर वाले हिस्सा होगा मेंटल, या प्रोट्रूबेंस पढ़ा था हमने, राइट। मेंटल प्रोट्रूबेंस और साइड में ट्यूबरकल्स थे,
तो इसके पीछे वाला हिस्सा होगा ये स्पाइन है, यहाँ से निकलेगा जीनोग्लॉसस, आपके हाइड बोन पे भी लगेगा एंड ये पूरा ऊपर बॉडी भी बना रहा है और सब कुछ बना रहा है, ठीक है ना। ये आ गया आपका शेप, पोजिशन आ गई एंड सबसे एक्शन, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर मसल का एक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिप्रेसेस द टंग, अगर पूरा नहीं लिख सकते बच्चों जरूर लिखना है, डिप्रेसेस द टंग इन द सेंटर पार्ट, क्योंकि बिग बॉडी बना रहा है इसका, ठीक है। इट फॉर्म्स अ लॉन्गिट्यूडल फरो, मतलब जो मुंह में वो प्याला की तरह कप सा बना सकता है उसको, ठीक है ना। पोस्टीरियरली पुल्स द टंग एंटीरियरली, प्रोट्रूजन के लिए काम आता है, जुबान बाहर निकालने के लिए, इतना बड़ा बल के पुशेस द टंग आउट बेसिकली, राइट। एंड इट ऑल्सो रिट्रैक्ट्स द एपेक्स ऑफ द प्रोट्रूडेड टंग, अब वापस अंदर खींचना हो ना टंग को तो वो भी मदद करता है, ठीक है। वैगिंग द टंग, मतलब आगे पीछे करके जो हिलाते हैं ना, आवाज निकालते हैं, दैट इज वैगिंग ऑफ द टंग, वो भी करता है। तो जीनोग्लॉसस। Now we come to again दूसरा हायोग्लॉसस, मैंने दिखाया भी दो दफा, हायो मतलब हायर्ड बोन, ग्लॉसस मतलब टंग, ठीक है। हायोग्लॉसस इज थिन एंड क्वाड्रिलैटरल, क्वाड मतलब चार सरफेस होंगे, देखो ना, ये थिन सा पतला सा एक है, यहाँ से निकल रहा है, अगेन दोनों साइड पे होंगे, राइट का भी होगा और लेफ्ट का भी होगा, ठीक है। दोनों के ग्रेटर हॉर्न्स होंगे ना, तो यहाँ से निकलेगा आपका हायर्ड बोन से निकलेगा। क्वाड्रेंगुलर मतलब 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड ऊपर का चौथा, सो दिस क्वाड्रिलैटरल इन शेप, समझ में आ रहा है बच्चों। इट्स क्वाड्रिलैटरल इन शेप, इट इज थिन, ठीक है, एंड इट हैज अगेन प्रॉक्सिमल अटैचमेंट क्या है, बॉडी एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायर्ड बोन, हमने हायर्ड बोन मैंने पूरी पढ़ाई है आपके बॉडी पे, ये पूरे एक साइड पे यहाँ से यहाँ तक पूरा निकलेगा आपका, क्या ये पूरे साइड पे निकलेगा आपका हायोग्लॉसस मसल, राइट का अपना होगा राइट साइड पे, लेफ्ट का अपना होगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हायोग्लॉसस मसल, ठीक है। और कहाँ जाके इसकी डिस्टल अटैचमेंट होगी, इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल पार्ट ऑफ द टंग, ग्लॉसस में टंग में जाके लगेगा लैटरली, ठीक है ना, क्योंकि लैटरल साइडों से निकल रहा है। अगेन इसका काम क्या है, डिप्रेसेस द टंग, मतलब नीचे करना, जब हम कहते हैं ना जबान नीचे करें, ठीक है, स्पेशली पुलिंग इट साइड्स इनफीरियरली, नीचे शॉर्टन करता है, प्रोट्रूड करता है टंग को और डिप्रेस करता है टंग को, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं स्टाइलोग्लॉसिस, व्हिच इज व्हाट, अगेन स्टाइलॉइड प्रोसेस, मैं आपके उसमें पढ़ाया गया है आपको, ये क्रेनियम में होता है छोटा सा पतला सा निकलता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है ना, वहां से निकलेगा एंड ग्लॉसिस में आके लगेगा, तो उसको स्टाइलोग्लॉसिस। स्मॉल है, शॉर्ट ट्रायंगुलर मसल, ये देखिए ना, यहाँ से ये इस छोटी सी चीज को ना, क्योंकि हमने यूं थोड़ा सा पॉइंटी सा करा तो हमने उसको ट्रायंगल कह दिया, ठीक है ना। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस, आप स्टाइलर प्रोसेस भी लिखेंगे, यू विल गेट मार्क्स फॉर इट, ठीक है ना। सो स्टाइलर प्रोसेस कम्स फ्रॉम द स्टाइलर प्रोसेस, ठीक है, वहां पे एक स्टाइलोइड लिगामेंट भी होता है ऑब्वियसली, ठीक है, तो लेकिन आप स्टाइलर प्रोसेस लिखेंगे, यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। ये लिगामेंट यहाँ पे नजर भी आ रहा है, इफ यू कैन सी दिस व्हाइट थिंग, दिस इज योर स्टाइलॉइड लिगामेंट, स्टाइलोइड लिगामेंट, खैर, ठीक है। उसकी डिसअटैचमेंट क्या है, पोस्टीरियरली इंटरडिजिटिंग, डिजिटेटिंग मतलब कि आपके डिजिट्स जब आप इंटरवाइन करते हैं ना, ठीक है, डिजिट्स इंटरडिजिटिंग विद द हायोग्लॉसस, ये भी नजर आ रहा है आपको। तो अगर आपका नेटर्स खुला हुआ होगा या आपका केलम खुला होगा, इफ यू कॉन्स्टेंटली लुक एट दिस पिक्चर यू कैन सी साइलोइड से निकल रहा है और किस में जाके लग रहा है, हायोग्लॉसस में लग रहा है, राइट। हायोग्लॉसस आपके ग्रेटर हॉर्न से निकल रहा है, बॉडी से निकल रहा है, किधर जाके लग रहा है, आपके लैटरल साइड तक टंग में लग रहा है। जीनोग्लॉसस कहाँ से निकल रहा है, मेंटल स्पाइन से निकल रहा है, मैंडिबल के, और ये हायर्ड बोन से जाके लग रहा है, ये पूरा, राइट। So if you understand this picture properly, you will not have any problem inshallah ta'ala remembering this. अब main actions आ जाते हैं। main actions में क्या क्या है, again retrudes the tongue, curls it up, जो curl गोल गोल बना लेते हैं ना, ठीक है। it's working with the gynoglossus to form a central trough during swallowing, जैसे जब हम swallow करते हैं तो यूं गोल सा बना के नीचे करते हैं ना, तो वो जो टंग जो गोल सा बनता है ना, उसको मदद करता है gynoglossus को स्टाइलोग्लॉसस साइडों से कर्ल करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट मसल पे आ जाते हैं, पलाटोग्लॉसस मसल। पलाटोग्लॉसस इज नाउ योर क्रेसेंट शेप मसल, ठीक है। पैलेट से निकलता है, मैंने उस वाले पिक्चर में दिखाया था, फॉर्म्स पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द isthmus ऑफ द फॉसिस। अगर ये नहीं आया तो प्लीज जरूर लिखना, फ्रॉम द पैलेट मसल से निकलता है एंड इट्स क्रेसेंट शेप्ड, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द palatine aponeurosis of the soft palate. It enters the posterior lateral tongue transversely, blending with the intrinsic transverse muscles, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका काम क्या है, केपेबल ऑफ एलिवेटिंग द पोस्टीरियर टंग, तो पीछे वाला पार्ट है ना, जब हम घोटते हैं खाना ना, तो उसको एलिवेट करता है ताकि नाक में ना घुस जाए खाना आपका ना। मोस्टली कॉमनली एक्ट्स टू कंस्ट्रिक्ट द isthmus ऑफ द फॉसिस, ठीक है। सो इट कंस्ट्रिक्ट्स द isthmus ऑफ द फॉसिस, मतलब साइडों में जो isthmus को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, आपके सॉफ्ट पैलेट को डिप्रेस करता है एंड इट हेल्प्स यू डेग्लूटेट, मतलब swallowing में मदद करता है आपके। ऑलराइट बच्चों, आई होप समझ में आ रहा हो, टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर वन बट यू हैव टू लिसन, ठीक है ना।
ये हमारा खत्म हुआ एक्सट्रिंसिक. नाउ वी कम टू द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग. इंट्रिंसिक मसल्स इज बेसिकली योर सबसे इजी है, पता है इनके नामों के हिसाब से, ठीक है ना. इनका काम किया हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना. एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या करते हैं, आपके टंग को मूवमेंट में हेल्प करता है. इंट्रिंसिक मसल्स आपकी शेपिंग में हेल्प करता है. अब मुझे पता नहीं मैं सही बात बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, मैंने यही बोला था ना. हाँ, पोजिशन में और मूवमेंट में, ठीक है. इंट्रिंसिक मसल्स शेप में करते हैं, ठीक है. ओके, बिस्मिल्लाह. नाउ इंट्रिंसिक मसल आपके क्या है, सुपीरियर, इंफीरियर, ट्रांसवर्स, वर्टिकल. जैसे नाम है वैसी जगह है, वही काम है इसका, ठीक है बच्चों. नाउ वी हैव द सुपीरियर, इंफीरियर. सुपीरियर होगा ये जो है ना क्रॉस सेक्शन, ये देख रहे हैं बच्चों, ये इस तरफ का कौन सा क्रॉस सेक्शन है, मतलब वर्टिकली काट दिए लेकिन आप पीछे से देख रहे हो उसको, ठीक है. अब इसके पीछे हम इधर खड़े हुए हैं, हमारा आई व्यू उधर से, हम इधर से देख रहे हैं इसकी जबान को इधर से, ठीक है ना. तो आपकी दांत नजर आ रहे हैं पीछे से इसके, ठीक है. अब सुपीरियरली टंग के अंदर प्रेजेंट होगा ये, ठीक है. तो ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूड है, लंबे लंबे ये मसल्स ना, यूं लंबे लंबे फाइबर्स जा रहे हैं, लंबे लंबे यूं. तो सुपीरियर होंगे तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडल. अच्छा, इंट्रिंसिक मसल्स के बच्चों अटैचमेंट्स ये आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना. बिफोर वी गो हियर, दे आर प्रेजेंट विद इन द टंग. मोस्टली इनके अटैचमेंट्स विद इन द टंग होते हैं. टंग के अंदर ही जो मसल्स है ना, इन्हीं के अंदर ही एक दूसरे से अटैचमेंट्स होती हैं इनके. मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ. तो अगेन, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडल मसल, inferior longitudinal muscle, transverse longitudinal muscle and vertical longitudinal muscle. मेरे इधर पूरा नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका नाम क्या है, superior longitudinal muscle, inferior longitudinal muscle, ठीक है. अभी देखें, सुपीरियर होगा तो सुपीरियर, इंफीरियर होगा तो इंफीरियर, ट्रांसवर्स मतलब बीच में जा रहा है, ठीक है. ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल जो है ना, एक दूसरे को जैसे एक ग्रिड फॉर्म करते हैं. आपने देखा हो ना, जब ग्राफ्स फॉर्म करते हैं तो ग्रिड बना होता है, यूं वर्टिकल जा रहा होता है, यूं ट्रांसवर्स जा रहा होता है. ये जो ग्रिड फॉर्मेशन है ना, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ये दोनों मिलके ये बीच में फॉर्म करते हैं दिस ग्रिड. ये क्या है आपका लिंगुअल सेप्टम, ठीक है ना. ये आपका हाइड बोन आ रहा है यहाँ से, ठीक है. तो ये जीनोग्लॉसस मसल आ गया, हायोग्लॉसस मसल हाइड बोन से नीचे से आ गया, स्टाइलोग्लॉसस मसल आके बिग चंक बन गया, रूट ऑफ द टंग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. सबका अपना है, राइट का अपना अपना निकल रहा है, लेफ्ट का अपना अपना निकल रहा है, लिंगुअल सेप्टम में बीच में. और फिर बीच में जो आपके मेन टंग जो इधर आता है, जो हम जबान बाहर निकालते हैं, ये सब क्या है इसका, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल. मतलब ये जो ग्रिड बन रहा है, ग्राफ लाइक ग्रिड, यूं यूं सीधा सीधा, दिस इज बोथ इन द मिडल, एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो नीचे की तरफ है. ओके, किधर गया. ओके, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल इज थिन लेयर, ठीक है. इट्स डीप टू द म्यूकस, डीप मतलब कि राइट बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन है, ऊपर की तरफ है, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के एकदम नीचे है, ठीक है ना. इसके अटैचमेंट्स क्या है, सब म्यूकस फाइब्रस लेयर एंड द मीडियन फाइब्रस सेप्टम. तो बीच में से जो हमने ये सेप्टम है ना, इधर से इसकी अटैचमेंट्स यहाँ से आ रही है, ठीक है. म्यूकस के एकदम बिलो है एंड इसके बीच में से इसकी आ रही है, ठीक है. डिस्टल अटैचमेंट्स क्या है, मार्जिन ऑफ द टंग एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है. मैं जाहिर बात है ऊपर ही अटैचमेंट होगी, इसके ऊपर ही है. कर्ल्स द टंग लॉन्गिट्यूडनली अपवर्ड्स एलिवेटिंग एपेक्स एंड साइड्स ऑफ द टंग. जबान को जब हम कहते हैं ना ऊपर टच करें, ऊपर तालू पे टच करें, पैलेट पे टच करें, ऊपर करना, सो दिस हेल्प्स विद सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, हेल्प्स विद दैट. इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, नैरो बैंड होती है, ठीक है. क्लोज टू द इंफीरियर सरफेस होगी, इसलिए इंफीरियर है. रूट ऑफ द टंग पे निकलती है, तो सबसे नीचे है ना बच्चों मेरा, ये सबसे नीचे है, इधर होगा ना इंफीरियर, तो इसलिए रूट ऑफ द टंग पे जाके लगता है, ठीक है. ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे लग रहा है, ये रूट ऑफ द टंग पे लग रहा है, ठीक है. रूट ऑफ द टंग एंड बॉडी ऑफ द हायर पे एंड एपेक्स ऑफ द टंग पे ऊपर जाके अटैच होता है. इट कर्ल्स द टंग लॉन्गिट्यूडनली डाउनवर्ड्स. तो सुपीरियर क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली अपवर्ड्स कर रहा है, और ये इंफीरियरली क्या कर रहा है, जाहिर बात इंफीरियर तो डाउनवर्ड्स करेगा, डिप्रेसिंग द एपेक्स, ठीक है. नाउ देयर इज ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल, ठीक है. ट्रांसवर्स इज डीप टू द सुपीरियर, नीचे सुपीरियर के, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल के एकदम नीचे है, ठीक है. मीडियन फाइबर सेप्टम पे लगता है, क्योंकि ये भी मीडियन फाइबर सेप्टम पे लगता है, तो ये भी मीडियन फाइबर सेप्टम पे लगेगा. सुपीरियर लगता है तो ट्रांसवर्स भी लगेगा. एंड फाइब्रस टिश्यू एट द लैटरल लिंगुअल मार्जिन्स, ये साइडों पे जाके लगेगा, हमने डिस्कस किया ना, ये बीच में, राइट. तो ये साइडों पे जाके अटैच होगा लैटरल मार्जिन्स पे. मीडियल सेप्टम से निकल रहा है, सुपीरियर के साथ ऊपर अटैचमेंट है, एंड साइडों पे लैटरल पे जाके निकल रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मसल. व्हाट इट डज, इट नैरोज एंड इलोंगेट्स. जब हम कहते हैं ना पतला से जबान बाहर निकल, इलोंगेट्स इट, ठीक है. जब आप जबान बाहर निकालते हैं तो यू कैन हैव यू नोटिस कि आप पतला भी कर सकते हैं और उसको चौड़ा भी कर सकते हैं. अगर पतला करना होगा तो आपको ट्रांसवर्स मसल लगेगा, अगर चौड़ा जबान बाहर निकालेंगे तो वर्टिकल मसल्स फ्लैटन्स एंड ब्रॉडन्स द टंग, ठीक है. सब प्रोट्रूजन में काम आते हैं. और सुपीरियर इंफीरियर क्या करते हैं, ये कर्ल करते हैं. सुपीरियर सुपीरियरली करेगा, अपवर्ड्स मूवमेंट करेगा, इंफीरियर नीचे इंफीरियरली करेगा,
Okay, so these are the tongues. Now, most important, सबसे important, please बच्चों, innervation of the tongue. The innervation of the tongue is basically all the muscles, बार बार बोलती हूँ, except the palatoglossus supplied by the hypoglossal nerve, and palatoglossus is supplied by the vagus nerve. ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है. अब आ जाते हैं द मेन काम, जो टेस्ट, जो सेंसेशंस हैं इसकी, ठीक है ना. ये है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में जनरल सेंसेशन होती है, मतलब जब आप टच करते हैं या ओ गर्म है कि नहीं, ये जनरल सेंसेशन है ना. तो बच्चे, जो जनरल सेंसेशन जो है, ये है म्यूकोसा जो होती है, दिस इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल नर्व, which is branch of the trigeminal nerve. ये trigeminal nerve है, fifth cranial nerve is the trigeminal nerve. Trigeminal nerve का कौन सा हिस्सा, 3 हिस्से होते हैं trigeminal nerve के, ठीक है. थर्ड वाला mandibular division of the trigeminal nerve supplies the general sensation of the tongue. Very important बच्चों मेरा. और जो special sensation होती हैं, जो मैंने इसके टेस्ट किया, sweet, salt, sour, bitter, ठीक है ना, except for the valid papilla, ठीक है, जो सबसे पीछे है, ट्रांसवर्स, जो टर्मिनल sulcus के पास है, उसके अलावा किधर is supplied by the chorda tympani nerve, which is the facial nerve, ठीक है. So taste, special sensation is facial nerve, ठीक है ना, and general sensation is trigeminal nerve, mandibular division, ठीक है. ये हमने किसकी बात की, anterior 2/3. Both the chordae tympani and the lingual nerve, मतलब facial nerve और ये जो है trigeminal nerve, join in the infratemporal fossa and run anteriorly in the sheath. Infratemporal fossa के contents को पूछे तो क्या होते हैं, facial nerve, chordae tympani nerve and lingual nerve, किसकी, trigeminal branch की. ये भी केलम की बहुत प्यारी पिक्चर है बच्चों, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है ना. anterior 2/3 of the tongue, ये क्या स्पेशल है, स्पेशल होगी तो chordae tympani से आ रही है, राइट. और जनरल सेंसेशन किससे आ रही है, लिंगुअल नर्व से आ रही है, ठीक है. अच्छा, हाइपोग्लोसल नर्व क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सारे मसल्स को करता है, सिवाय किसको, पैलेटल ग्लॉसस को. पैलेटल ग्लॉसस ये साइड में आ रही है एंड इट्स सप्लाइड बाय द वेगस नर्व, ठीक है. अब आ जाते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग. जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है ना, इट इज सप्लाइड बाय द किससे, एंड द वैलिड पैपिला. वैलिड पैपिला किधर है, वैलिड पैपिला किधर है, ये टर्मिनल सल्कस पे, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एंड ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग बन जाता है, राइट. दिस इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व, it's about the glossopharyngeal nerve, ठीक है, which is your 9th nerve, ठीक है ना, and it supplies both general and special sensations, ठीक है. Now in the book it says, okay, internal laryngeal nerve, which is a branch of the vagus nerve, also has some supplies, ठीक है. ये दोनों थोड़ा बहुत ना वेगस नर्व भी आके लग जाती है यहाँ पे, ये छोटा सा ये वेगस नर्व जा रही है, क्योंकि वो पैलेट को सप्लाई करती है, राइट. दोनों पैलेट को सप्लाई करती है, थोड़ा सा वेगस नर्व भी इधर आके कोइंसाइड होती है, तो उसके ट्विग्स लिखे हुए हैं. लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग और वैलिड पैपिला का कौन करता है, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व करता है, ठीक है. एंड एंटीरियर 2/3 को जनरल कौन करता है, ट्राइजर्मिनल नर्व, लिंगुअल नर्व. और स्पेशल कौन करता है, फेशियल नर्व. कौन सा पार्ट, chordae tympani part. These mostly sensory nerves also carry parasympathetic secremotor functions to the Sears glands. मतलब थूक, जब कुछ मजे का नजर आता है तो थूक निकलता है मुंह पे. जी हाँ, छोटी सी जुबान है, इतना सारा काम है बेटा, इतना खाते भी तो हैं, मैं इतना बोलते भी हम इससे, तो इतना तो होना चाहिए ना, बेचारे को मिलेगा इतना. चलो टाइम खत्म हो रहा है. आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द टंग, सबसे इजी है, मजे का है, लिंगुअल आर्टरी. अगर ये सब कुछ आज नहीं हो रहा तो लिंगुअल आर्टरी इज द supplies to the tongue. Lingual artery arises from the external carotid artery, ठीक है. lingual artery के कितने ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं. डोर्सल, ऊपर वाला हिस्सा जो सप्लाई कर रहा है, डोर्सल lingual artery supplies the root of the tongue, ठीक है. एंड डीप lingual artery, ठीक है, जो inferior side of the tongue को करेगा. डोर्सल lingual artery जो है ना, both the dorsal lingual arteries, राइट की अपनी आएगी, लेफ्ट की अपनी आएगी, राइट. आपके राइट एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड होती है, तो राइट एंड लेफ्ट लिंगुअल आर्टरी भी होगी, राइट एंड लेफ्ट डोर्सल लिंगुअल आर्टरी भी आएगी, ठीक है. दीज बोथ कम राइट एंड लेफ्ट. और क्योंकि बीच में इतना बड़ा सेप्टम है, लिंगुअल सेप्टम है ना, तो ये दोनों मिलते नहीं है. ये जो बीच में सेप्टम है ना, ये दोनों मिलते नहीं है. कौन से, डोर्सल वाले. लेकिन जो डीप लिंगुअल आर्टरी है ना बच्चा आपका, ये जो है सेम लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन ये पूरा डीप इंफीरियर पे जाएगी, इंफीरियरली जाती है और आपके एपेक्स पे जाके मिलती है. राइट एंड लेफ्ट की दोनों कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट की, ठीक है ना.
तो अब आ जाते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। पिक्चर पिक्चर पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मेरे पिक्चर्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रहा है आपका, ठीक है। एक्सटर्नल आर्टरी ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। हम किसकी डिस्कस करेंगे? लिंगुअल आर्टरी, जबान की तरफ जो जा रही है। ये देखें कर्ली कर्ली सा, ठीक है। तो ये कर्ली कर्ली से निकला, ठीक है। अब सबसे पहले ये पीछे रूट को दे रहा है, तो ये कौन सा हुआ? डोर्सल लिंगुअल आर्टरी। मुझे लगता नहीं, मुझे 100% श्योर हूं मैं कि जो उसवा कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सम रूट आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोर्सम लिंगुअल आर्टरी आ जाती है, ठीक है। देन कम्स दी डीप, ये इंफीरियर सरफेस को जो सप्लाई करी है, लेबल भी हुआ है, ये रहा, ठीक है। लिंगुअल आर्टरी ही आ रही है। इसके ब्रांचेस क्या क्या है? एक आती है डोर्सल जो रूट को सप्लाई करी, ये डोर्सल लेबल भी हुआ है। एंड एक आ रही है ये वाला डीप लिंगुअल आर्टरी। अब क्योंकि डोर्सल इधर ही रह जाती है ना, तो बीच में इसके सेप्टम आ रहा है, तो राइट की अपनी लेफ्ट की अपनी। लेकिन क्योंकि ये देखें डीप आगे तक जा रही है ना, और ये एपेक्स तक जा रही है यहाँ तक, तो ये राइट एंड लेफ्ट दोनों यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे एंड दे विल शेयर इट, ठीक है। चलो अब ये तो छोड़ो बच्चों, कौन पढ़ाया, पढ़ो अब जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ समझ में आ रही है बच्चों मेरे? एक लिंगुअल आर्टरी भी देती है। हमने डीप लिंगुअल आर्टरी किधर देखी थी? पिक्चर में देखी थी ना, इंफीरियर साइड ऑफ द टंग में नजर आ रहा था लिंगुअल आर्टरी। सबकी नजर आती है, देखना अपना आईने में सब जबान देखना अपनी। अब वीनस सप्लाई कहाँ से आती है इसकी? वीनस सप्लाई इज बेसिकली डोर्सल लिंगुअल वेन एंड डीप लिंगुअल वेन, और दोनों अपनी अपनी आर्टरीज के साथ जाती है, ठीक है। डोर्सल लिंगुअल वेन एंड deep lingual veins. Deep lingual veins begin at the apex of the tongue. अच्छा, हम आर्टरी जब भी पढ़ते हैं हम सोर्स से पढ़ते हैं, हार्ट से पढ़ते हैं। हम वेन जब भी पढ़ते हैं हम ऑर्गन से पढ़ते हैं। तो हमने आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड से पढ़ी, हम वेन कहाँ से पढ़ेंगे? टिप ऑफ द टंग से पढ़ेंगे। जो टिप ऑफ द टंग से आ रही है, एपेक्स से आ रही है, वो क्या होंगी? डीप लिंगुअल वेन होंगी, ठीक है ना। ये सारी जा रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं किससे? आपकी इंटरनल जुगुलर वेन में आके ड्रेन हो रही है। और ये होगी आपकी सबलिंगुअल वेन, ये आएगी आपकी इधर से आएगी, ये वाली होगी, हाँ ठीक है ना, डोर्सल लिंगुअल वेन। दी बोथ गो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरीज एंड दे ड्रेन वेयर इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ये तो मजे की पिक्चर दिखाई थी ना, ये कौन सी होगी आपकी इंफीरियर सरफेस पे? डीप लिंगुअल वेन, राइट हियर, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज टाइम इज अप, बट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। लिम्फाइटिक्स कौन सी उसकी? बायलैटरल होती हैं, ठीक है, और नाम के हिसाब से याद करनी, ठीक है। सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। मीडियल पार्ट को कौन सी ड्रेन करेगी? बॉडी को डायरेक्टली इंफीरियर करेगी। सो सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। एंड आपकी है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। एपेक्स और फ्रेन्युलम जो है, जो बीच का हिस्सा है, दे ड्रेन इन द सबमेंटल। क्यों? मेंटल मतलब चिन। तो जो एपेक्स ऑफ द टंग है और जो फ्रेन्युलम है ना, ये सब मेंटल में ड्रेन होंगे। बाकी सारे कोरस्पॉन्डिंग टू देयर नेम। मैंने तुम लोग का टेस्ट भी लेना था, इतना ज्यादा मैंने बातें कर ली, टेस्ट ही लिए तुम लोग का। चलो अगर क्लास खत्म नहीं हुई तो तुम लोग जल्दी जल्दी बता सकते हो उसके आंसर्स। कौन बताएगा? कैन यू रीड द क्वेश्चन? Which papilla are present anterior to the sulcus termina? Very good, शाबाश। चलो नेक्स्ट, शाबाश, valid papilla। चलो ये बताओ। इसका बताओ क्या है? वेरी गुड, वेगस नर्व, शाबाश बच्चों। पैलेटल गॉसिस इज वेगस नर्व। चलो अब ये बताओ, डीप लिंगुअल वेन ड्रेन्स इनटू व्हाट? ये तो शॉर्ट टर्म में भी होना चाहिए, अभी तुम लोगों ने पढ़ाया भी तुम लोग को डिमेंशिया के बारे में। डीप लिंगुअल वेन कहाँ होते हैं? शाबाश, इंटरनल जुगुलर, वेरी गुड। Chordae tympani is a branch of which cranial nerve? या अल्लाह, अभी तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। बी, फेशियल नर्व, एग्जैक्टली। मैंने सारे बी लिख दिए मुझे लगता है इसमें। चलो मैं देखती हूँ। चलो, Chordae tympani is the nerve innervating all except which papilla? हाँ ये बड़े मजे का है, चलो बताओ। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग मेरी बातें सुन रहे थे। वैलेट पैपिला, ठीक है ना। वैलेट पैपिला टर्मिनल सर्कस पे आता है, तो वो वेगस नर्व से सप्लाई होता है, सॉरी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई होता है, माय बैड बच्चों, ग्लॉसो उससे आता है। चलो एनी क्वेश्चंस बच्चों? एनी क्वेश्चंस?
Chalo, shabash. Thank you very much for listening and cooperating, bachon. I hope everyone's safe at home. Take care of yourselves and wear masks, right? Wash hands. Take care of yourself. Be good doctors. Okay. Thank you very much. Take care, bachon. Allah Hafiz and best of luck with everything.